Hello everyone, welcome to the third lecture of immunology. Before moving towards the next lecture, हमने पहले दो lectures में क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. First we saw immune system. Immune system. Immune system के अंदर हमने देखा this provides us the protection against the antigen. Immune system provides us the protection against antigen. Antigen कितने टाइप्स के थे? दो टाइप्स के, सेल्फ अल्टर्ड और नॉन सेल्फ एंटीजन. These are the two types of antigen. Non-self antigen के example थे virus, bacteria, pathogen. Okay, virus, bacteria, pathogens, parasites. Okay, pathogens ne parasites. After that, pollen grains, seafoods. These were the examples of non-self antigen. Self-altered antigen के example थे virus infected cells, bacteria infected cells. ओके, पैरासाइट इन्फेक्टेड सेल्स. सो बेसिकली हमारे बॉडी के सेल्स जो वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, दिस आर नोन एज सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन. ओके, आफ्टर दैट वी सॉ एंटीजन जब एंटर करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में तो वो स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को. ओके, एंटीजन स्टिमुलेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द innate immunity and the second one is the adaptive immunity. Innate immunity का दूसरा नाम क्या था? It is also known as natural immunity. Moreover, it is also known as inborn immunity. Okay, inborn immunity. Adaptive immunity is also known as acquired immunity. Acquired. Okay. So इसके हमने कुछ बेसिक डिफरेंशिएशंस देखे थे. जैसे innate immunity स्पेसिफिक नहीं है, it is non specific. Adaptive immunity is specific, highly specific. Okay. After that, we saw innate immunity is present prior to antigen exposure. Okay, prior to antigen exposure. एंटीजन के एक्सपोजर होने से पहले से प्रेजेंट होती है innate immunity. Adaptive immunity is not present prior to antigen exposure, but it is activated after the antigen exposure. Okay, it is activated after the antigen exposure. इसके बाद हमने देखा innate immunity immediately activate हो जाती है, immediately activate हो जाती है, और adaptive immunity slowly activate होती है. Slow immune response is generated by the adaptive immunity. तो जो जनरल जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है इम्यून सिस्टम का, इनेट इम्यूनिटी का, वो होता है जनरल रिस्पॉन्स. और एडेप्टिव इम्यूनिटी का होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन. ओके, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एंड जनरल रिस्पॉन्स. आफ्टर दैट वी सॉ मेमोरी. मेमोरी इनेट इम्यूनिटी में अब्सेंट होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती है. कौन से सेल्स? बी सेल्स और टी सेल्स के फॉर्म में. बी मेमोरी सेल और टी मेमोरी सेल्स, ये हमने देखा था. आफ्टर दैट वी सॉ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी लिमिटेड होती है इन केस ऑफ इनेट इम्यूनिटी, वही डाइवर्सिटी ज्यादा होती है इन केस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी. दिस वेर द वेरियस डिफरेंशिएशन पॉइंट्स व्हिच वी सॉ इन द फर्स्ट लेक्चर. आफ्टर दैट हमने एक ग्राफ स्टडी किया था. बेसिकली ग्राफ shows us time required to generate immune response. Okay, this is the protection level on the y-axis and this is the time. Okay, this is hours, days, weeks. Okay, सबसे पहले आता है innate immunity. Okay, but the protection level is less in case of innate immunity. After that adaptive immunity, ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करने वाला is adaptive immunity. More protection is given by adaptive immunity. सबसे पहले आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर जो एक्टिवेट होती है, दैट इज द innate immunity. ओके, ये इस तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं इन वेरियस लाइफ साइंसेस एग्जाम, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ओके, आफ्टर दैट वी सॉ कंपोनेंट्स ऑफ innate immunity. आफ्टर दैट वी सॉ कंपोनेंट्स ऑफ innate immunity. कितने कंपोनेंट्स थे? तीन कंपोनेंट्स थे. फर्स्ट वन वॉज First one was physical barriers. First one was physical barriers. Second one was internal defenses cells. And the last but not the least, it was blood proteins. Blood proteins. Okay. So physical barriers में दो most important थे, mucus associated lymphoid tissue और gut associated lymphoid tissue. इसके अलावा क्या क्या था? ओके, सलाइवा था, लाइसोजाइम था, स्किन था,
टीयर्स थे, ओके, ये सब चीजें थी इसमें। इंटरनल डिफेंसर सेल्स में हमने क्या पढ़ा था? इंटरनल डिफेंसर सेल्स में दो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे। फर्स्ट वन वाज ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन। ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन। ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन किसकी वजह से हो रहा था, किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा था? इट वॉज ड्यू टू द टोल लाइक रिसेप्टर्स। इट वॉज ड्यू टू द टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स कौन से दो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहा था? पैथोजन एसोसिएटेड molecular pattern और damage associated molecular pattern. These are the two patterns जो toll like receptor recognize कर पाते हैं, जिसके वजह से broad pattern recognition is possible in case of innate immunity. इसके अलावा कौन सा प्रॉपर्टी थी ड्यू टू द इंटरनल डिफेंसर सेल्स? इट वाज इट वाज द इफेक्टर रिस्पॉन्स। इफेक्टर रिस्पॉन्स बेसिकली ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन में इनेट इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एंटीजन, और इफेक्टर रिस्पॉन्स में वो किलिंग करते थे, ओके, ऑफ एंटीजन, किलिंग ऑफ एंटीजन। थर्ड वन इज द ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स में क्या क्या देखा था हमने? इंटरफेरॉन्स थे, ओके, डिफेंसिन थे, और क्या था? लाइसोजाइम थे। दीज आर द ब्लड प्रोटीन्स, वेरियस ब्लड प्रोटीन्स, ओके। सो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी के हमने कुछ सेल्स देखे। एडाप्टिव इम्यूनिटी के हमने कौन से सेल्स देखे? बेसिकली एडाप्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप्स के सेल्स थे, ओके। एडाप्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप्स के सेल्स थे, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ओके। बी सेल्स एंड टी सेल्स, इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ऐसा भी कह सकते हैं, ओके। बी लिम्फोसाइट, अनडिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट जो भी थे, उनके रिसेप्टर्स पे कौन से टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट थे? IgM as well as IgD. These are present on the naive B cell or undifferentiated B cells. Okay, undifferentiated B cells differentiate into two types of cells. First one is the B memory cells, and the second one is the plasma cells. Means what? B memory cells, as the name suggests, ये long term memory provide करेंगे, और plasma cells, these generate antibodies, antibody का secretion करते हैं, okay. T cells, T cells are converted into three types. T cells are differentiated into three types. First one is T helper, second one is T cytotoxic, and third one is T regulatory. Okay, these are the three types of cells. T helper के लिए हमने देखा था CD4 एक्सप्रेशन हो रहा था, T cytotoxic के लिए CD8 एक्सप्रेशन हो रहा था, ओके। ये टॉपिक CD4 और CD8 हम आगे जाके देखने वाले, फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना लर्न करना है। ये क्लासिफिकेशन हमने इतना ओवरऑल फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया। आफ्टर दैट, ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। यस, ये एक पॉइंट छूट गया हमारा। सो फर्स्ट इन्फेक्शन जब होता है, फर्स्ट एंटीजन एक्सपोजर, सो इट रिक्वायर्स 5 to 7 days। आफ्टर दैट बी सेल का फॉर्मेशन होगा और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, ओके, बी मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। जब री इन्फेक्शन होता है, तब the time required to eliminate these antigen is 1 to 3 days। means memory cells basically जो टाइम रिक्वायर होता है टू एलिमिनेट द एंटीजन, उसे डिक्रीज कर देते हैं, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स इन्वॉल्व इन द इनेट इम्यूनिटी। इस टॉपिक में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें। वी आर स्टडिंग अबाउट द cells that are involved in the innate immunity। एडाप्टिव इम्यूनिटी में कौन से सेल्स थे? बी सेल एंड टी सेल्स। इनेट इम्यूनिटी में कौन से सेल्स थे? इंटरनल डिफेंसर सेल्स। दीज आर इंटरनल डिफेंसर सेल्स। सेकेंड टाइप का था, ओके। फर्स्ट वन वाज फिजिकल बैरियर, सेकेंड वन वाज इंटरनल डिफेंसर सेल्स, एंड थर्ड वन वाज ब्लड प्रोटीन। सो ये हम इंटरनल डिफेंसर सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ओके। So the first one is the dendritic cells। First one is the dendritic cells। Dendritic cells के बारे में हमें जो
प्रॉपर्टीज याद रखनी है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड एपीसीज. व्हाट डू यू मीन बाय एपीसी? एपीसी मीन्स एंटीजन presenting cells. Okay, antigen presenting cells means what? बेसिकली जो टी सेल्स है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी हेल्पर सेल्स, ये डायरेक्टली एंटीजन को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. ओके, जो टी सेल्स है ये एंटीजन को डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. इन्हें कोई मॉलिक्यूल्स लगते हैं जो इन्हें वो एंटीजन प्रेजेंट करे. ओके, टी सेल्स require some specialized molecules to present antigen. Okay, so these molecules are known as MHC molecules. These molecules are known as MHC molecules. Now what do you mean by MHC? MHC means major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex. ये बेसिकली सेल की आइडेंटिटी इम्यून सिस्टम को देते हैं. ओके, these provide the cell identity to the immune system. Okay, or in more simple terms, these are the cell surface proteins जो प्रेजेंट करते हैं एंटीजेनिक पेप्टाइड्स टू द टी सेल्स. टी सेल्स को एंटीजेनिक पेप्टाइड्स प्रेजेंट करने वाले सेल्स आर नोन एज एंटीजेनिक पेप्टाइड्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट? बेसिकली वो इन सिंपल टर्म्स वो प्रोवाइड करते. ओके, वो परोस के देते हैं एंटीजन को टू द टी सेल्स. ओके, सो अबाउट द डेंड्रिटिक सेल्स, पहले टाइप के सेल्स हम स्टडी कर रहे हैं. दीज आर द डेंड्रिटिक सेल्स. डेंड्रिटिक सेल्स में जो हमें बात याद रखनी है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. एंटीजन प्रेजेंट करने वाले सेल्स. ओके, आफ्टर दैट these express both the MHC class 1 as well as class 2 molecules. बेसिकली ये जो MHC कॉम्प्लेक्स है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल. ओके, क्लास 1 एंड क्लास 2. जो क्लास 2 मॉलिक्यूल है ये टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, और क्लास 1 जो मॉलिक्यूल्स है वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को प्रेजेंट करते हैं एंटीजेनिक पेप्टाइड्स. ओके, these are the things to remember. So dendritic cells दोनों molecules को MHC class 1 as well as MHC class 2 दोनों molecules को express कर दे. So ये MHC class 1 की मदद से T cytotoxic cells को भी present करेंगे antigen, और MHC class 2 molecules की मदद से T helper cells को भी present करेंगे. Okay, talking about the synthesis of dendritic cells. Synthesis means what? MHC dendritic cells कैसे फॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम बोथ द lineages, that is the myeloid और lymphoid lineage. Myeloid और lymphoid lineage, these are the basically two lineages जिनसे various types of cells फॉर्म होते हैं. इसके ऊपर एक स्पेसिफिक लेक्चर इस प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल किया जाएगा. सो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि dendritic cells are formed from both the lineage, that is the myeloid as well as lymphoid lineage. ओके, सिग्नल, हर सेल को कोई ना कोई सिग्नल लगता है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. ओके, सो द सिग्नल रिक्वायर्ड बाय डेंड्रिटिक सेल इज FMS लाइक टायरोसिन काइनेस 3 लिगैंड, इन शॉर्ट FIT3L. दिस इज द सिग्नल रिक्वायर्ड बाय द डेंड्रिटिक सेल्स. ओके, डेंड्रिटिक सेल्स को जो सिग्नल लगता है वो होता है FLT3L. ओके, FMS लाइक टायरोसिन काइनेस 3 लिगैंड. नाउ एक्सेप्शंस पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमने देखा डेंड्रिटिक सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड एपीसी. सो ऐसे कौन से टाइप्स के डेंड्रिटिक सेल्स है जो एपीसी नहीं है? जो एपीसी नहीं है, नॉट एपीसी, दीज आर द फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स. सो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स आर नॉट द एपीसी, दैट इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है. ओके, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स. आफ्टर दैट स्पेसिफिकली अगर हमने पूछा एंटीजेनिक वायरस या फिर टाइप 1 इंटरफेरॉन्स के अगेंस्ट कौन से डेंड्रिटिक सेल्स काम करते हैं, सो दीज आर द प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्रिटिक सेल्स. ओके, दीज आर द प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्रिटिक सेल्स. ये दो चीजें हमें याद करनी है. सबसे पहले हमने देखा डेंड्रिटिक सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड एपीसीज. ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा? डेंड्रिटिक सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ओके, जो डेंड्रिटिक सेल्स है ये MHC क्लास 1 एज वेल एज MHC क्लास 2 दोनों मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट कर दे. ओके, दोनों मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर दे. वाया MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल ये T साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्सप्रेस कर दे, एंड विद द हेल्प ऑफ MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स ये T हेल्पर सेल्स को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, याद करने का तरीका, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, ये जो क्लास 2 है, इट इज सिमिलर टू समथिंग लाइक H. ओके, सो इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं. ओके, सो क्लास 2 मॉलिक्यूल T हेल्पर सेल को प्रेजेंट कर दे.
जो भी सिंथेसिस है ये दोनों lineage से हो रहा है with the help of myeloid lineage as well as lymphoid lineage, and the signal that is required by the dendritic cells is FMS like tyrosine kinase 3 ligand FLT3L. Okay. After that दो एक्सेप्शंस हमने देखे. ऐसे डेंड्राइटिक सेल्स जो एपीसी नहीं है, दीज आर द फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स. ओके. एंड आफ्टर दैट ऐसे डेंड्राइटिक सेल्स जो स्पेसिफिकली एंटीजेनिक वायरस के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या फिर टाइप 1 इंटरफेरेंस के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दीज आर द प्लाज्मोसाइटिक डेंड्राइटिक सेल्स. ओके. Moving towards the next type of cells, that is the macrophages. Okay, monocytes and macrophages. जब सेल्स ब्लड में होते तो उन्हें हम कहते हैं मोनोसाइट्स, और जब यही सेल्स टिश्यू के फॉर्म में होते तो इन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. Macrophages are basically the phagocytic cells. Phagocytic means what? This will kill the dead and unused cells. Okay, this will kill the dead and unused cells. ये साइटोकाइन सिक्रेट कर देगा अपॉन द एक्टिवेशन. ओके. एक्सप्रेस क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स, सिर्फ और सिर्फ एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करेंगे. डेंड्राइटिक सेल्स में क्या था? एमएचसी 1 भी था और एमएचसी 2 भी था. ओके, दोनों टाइप्स के एमएचसी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करते थे. बट इन द केस ऑफ मैक्रोफेजेस ओनली एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस्ड. ओके, ओनली एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस्ड. Moving towards the next point, we studied that monocytes या फिर macrophages ये phagocytosis करते हैं. So what is the mechanism of phagocytosis? Let's have a look on it. So जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी एंटीजन किसी सेल में इंट्रोड्यूस होते हैं, होस्ट में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम. जब भी कोई सेल होस्ट में एंटर करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से एनक्लोज हो जाते हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैगोसोम. ओके. सेल में ऑलरेडी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, वी नो दैट. ओके, लाइसोसोम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेल्स. आफ्टर दैट जो सेल्स को हमने एनक्लोज किया कैविटी में, जो एंटीजन को हमने एनक्लोज किया इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम, दिस कंबाइंस विद द लाइसोसोम टू फॉर्म phagolysosome. phagolysosome. ओके. phagolysosome के बाद क्या होगा? phagolysosome is converted into antigen peptide, कुछ इस तरीके से. आफ्टर दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है. ओके. In the host organism, endoplasmic reticulum is also present. Endoplasmic reticulum secrete करता है दो टाइप्स के, endoplasmic reticulum synthesize करता है MHC molecules को. The synthesis of MHC molecule takes place in the endoplasmic reticulum. Okay. After that, जो ये MHC molecules अभी यहाँ पे बने हैं, फॉर्म हुए, these MHC molecules combine with the antigen peptide. Okay, these MHC molecules combine with the antigen peptide, कुछ इस तरीके से. ये हुए MHC molecules. Okay, after that ये हुआ antigen peptide. This part was MHC and this is antigen peptide. So this overall mechanism is known as antigen presentation. Antigen presentation और antigen processing. So basically जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी एंटीजन होस्ट में इंट्रोड्यूस होता है, so it is converted into the phagosome और enclosed cavity. होस्ट में ऑलरेडी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है. Lysosome and phagosome combine to form phagolysosome. After that, phagolysosome is converted into the antigen peptide. Okay, somewhere in the host endoplasmic reticulum is present. Endoplasmic reticulum से क्या synthesize होता है? MHC molecule. Now these MHC molecule
express antigenic peptide in this form to the T helper cells. Remember, डेंड्राइटिक सेल्स में क्या हो रहा था, MHC क्लास 1 एंड क्लास 2 दोनों मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हो रहे थे. सो दैट इज व्हाई दे विल प्रेजेंट एंटीजन टू बोथ टी साइटोटॉक्सिक एज वेल एज टी हेल्पर सेल्स. कौन से सेल्स? डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट करेंगे. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रोफेज, इसमें सिर्फ MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हो रहे थे. सो दैट इज व्हाई दे विल प्रेजेंट द एंटीजन ओनली टू टी हेल्पर सेल्स. आई होप ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, अगेन सी दिस, जो भी नॉन सेल्फ बैक्टीरिया थे, जो भी नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल थे, बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग, सो एंटीजन अपटेक होता है. उसका पहले क्या होता है? एंटीजन अपटेक इनटू द फॉर्म ऑफ फैगोसोम, इनटू द फॉर्म ऑफ फैगोसोम इन क्लोज्ड कैविटी में. आफ्टर दैट lysosome is already present in the host, so phagosome and lysosome combine to form phagolysosome. Okay, phagolysosome बाद में बनता है एंटीजन पेप्टाइड. अगेन somewhere in the host endoplasmic reticulum is present. Endoplasmic reticulum से क्या होगा? क्लास 2 का सिंथेसिस होगा MHC मॉलिक्यूल का. इन द केस ऑफ मैक्रोफेजेस, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोफाज. ओके, आफ्टर दैट MHC class 2 molecules combine with antigen peptide. This is the MHC class 2 molecule. This is the antigen peptide, and these are the T helper cells. These overall mechanism is known as antigen presentation, or we can say antigen processing. Okay. So there are two types of antigen killing. There are two types of antigen killing. First one is oxygen dependent and oxygen independent. Oxygen dependent, as the name suggests, there are reactive oxygen species involved. Okay, and oxygen independent, there are TNF alpha, defensin, lysozyme, hydrolytic enzymes. These are the oxygen independent killing mechanisms. Okay, the most important point in this macrophages is that names of macrophage in various tissues, अलग अलग टिश्यूज में मैक्रोफेज के अलग अलग नाम से अलग अलग नाम है. ओके, सो लंग्स में उन्हें हम कहते हैं अल्वेओलर सेल्स. मैक्रोफेज दैट आर प्रेजेंट इन द लंग्स आर नोन एज अल्वेओलर सेल्स. मैक्रोफेज दैट आर प्रेजेंट इन द स्प्लीन आर नोन एज स्प्लीनिक सेल्स. ओके, macrophage present in liver are known as Kupffer cells. Macrophage present in bones are known as osteoblast. Macrophage present in kidney are known as mesenteric cells. And macrophage present in the brain are known as microglial cells. Okay, so Kupffer cells, mesenteric cells, microglial cells, ये important है, ये अलग अलग लाइफ साइंस एग्जाम्स में आ चुके हैं. So these are the important names of macrophages in various type of cells. Okay, so this was all about today's lectures. आज हमने दो टाइप्स के सेल्स कवर किए. फर्स्ट वन वाज डेंड्राइटिक सेल्स एंड सेकेंड वन वाज मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स. These are the cells involved in the innate immunity. So in the next lecture, we will begin with the natural killer cells, then neutrophils, eosinophils. These are various types of cells involved in the innate immunity. Okay, thank you.